ये सारा मामला जो है ये अवाम का है, अवाम को किसी तौर पे डिसफ्रेंचाइज नहीं किया जा सकता और यही ड्यूटी थी इलेक्शन कमीशन की। ये टेक्निकलिटीज और इनके जरिए उस अवाम को नहीं, उनके हक नहीं लिए जा सकते थे। दैट इज द स्पिरिट ऑफ आर्टिकल 17। yes. और इसी गलती को खुद दुरुस्त करना चाहिए था इलेक्शन कमीशन को। द पीपल शुड नॉट हैव सफर्ड, दे शुड नॉट हैव बीन डिसफ्रेंचाइज्ड। You don't want to argue further, please take your seat. Sorry, I will now insist that you argue the case. Sir, I'm not hearing what, I don't know what to write on that book. I've noted, let me just complete the facts. Mrs. Doba, 2017 and rules 92 to 94 of the election rules 2017 apply to a political party who did not contest the elections. ये तो वही पहला वाला है। नहीं, अच्छा, apply to a political party who did not contest the elections but has general seats in the assemblies. In other words, there is no timeline. ये जो timeline है ये अप्लाई नहीं कर सकती उन पॉलिटिकल पार्टीज के जिनकी पार्लियामेंट्री पार्टी फॉर्मेशन होती है इलेक्शन के बाद। इसलिए मैं कहता हूं, in other words, there is no timeline for submission of lists of such political parties before the elections, except after the elections. ये जमा ही नहीं करवा सकती लिस्ट बिफोर। आपके 3 दिन जो आपके तो 3 दिन के बाद शुरू होंगे, जी, आप कह रहे हैं ना, टाइम आपका जो है अप्लाई करने, ये जमा ही नहीं करवा सकती। आपके मुताबिक there are two sets of parties. Yes. One are contesting elections, Yes. the other might not contest Yes. elections. This set of rules apply to To contesting that, elections. yes. What about this 6 that you just read? 92 ka sub rule 6. How would you interpret sub rule 6? Sub rule 6, one deals with joining independents. Now there are two kinds of parties they can join. One is a party in which there are already general seats which they join, but then there is a party where there is no general seats, which has not contested the elections. So subsection 6 will apply, yes, in terms of joining to both sets of parties, but when it comes to the timeline to submit list, would only apply to the former and not to the latter. So this is my second proposition. Before you move on, जी. just one question जी. that इसलिए मैं वायरीज चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, ये अप्लाई नहीं करता। the actual formula as to how the seats get allocated is given in rule 94, right? जी 94। The actual formula जी given in rule 94. जी One question, does the parent act have a provision which says that the reserved seats shall be allocated by the election commission in terms as prescribed or something like that? Because I was looking at section 104, it doesn't say so in so many words. नहीं, 104 में तो नहीं है, मैं रूल मेकिंग पावर देख लूँ। नहीं, रूल मेकिंग पावर तो है। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि क्या इलेक्शन एक्ट इटसेल्फ में ये लिखा हुआ है कि जी जो भी फॉर्मूला इस्तेमाल होगा जो कि 94 में क्रिस्टलाइज हो रहा है, दैट विल बी एज प्रिस्क्राइब्ड और वर्ड्स टू दैट इफेक्ट? नहीं, 104 में नहीं है। So could it be argued on that basis that this rule 94, which is just a rule and appears to have popped up out of essentially nowhere because the parent act doesn't seem to confer any such power, is in terms of its how should I put this, in terms of its strength and validity on even a lesser footing, that this is something that the election commission has done of its own bat. There can be different formulas for making the allocation, but the power as such is not conferred by the parent. Yes, I would even go to। इसको जरा लेकिन चेक कर लीजिएगा, मुझे नजर नहीं, मुझे भी ना, मेरे ख्याल में भी नहीं है। फैसल एक चीज यहाँ फर्दर जरा देख लीजिएगा। एक है कि जो पॉलिटिकल पार्टी कोई सीट विन नहीं करती जी, बट goes in the election, files the nomination papers, आपकी पार्टी ने कोई
एक सिंगल नॉमिनेशन पेपर फाइल किया नहीं। थ्रू द पाकिस्तान नेशनल और प्रोविंशियल? यही सवाल है कि क्या रिजर्व सीट्स के लिए आइदर ऑफ द टू कंडीशन जरूरी है, कॉन्टेस्ट और प्रोपोजिशन वोट? proposition. नहीं, मैं आता हूँ सिक्योर पे भी आऊंगा। सारा लोग जो है सेक्योर्ड पे घूम रहे हैं, सेक्योर्ड। So, Mr. Faisal, this word सर दिस विल हॉन्ट मी आज रात को सिक्योर आपने जिस तरह कहा है ना। Mr. Faisal, जी 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 perhaps the word secure need not haunt you. अच्छा, thank you. I am very happy, sir. Because there are two ways of securing them. जी. One is through election, the other is through joining. Yes. So there are two ways of securing. The word secure does not mean that you need to win the elections. You could secure them if somebody were to join you also. You still secured those. एक स्लीपिंग पिल मेरी बच गई सर। Let me है बाकी नहीं। How many more propositions? प्रोविजो के साथ मिला के पढ़ेंगे तो सर फिर दो आपको कितना प्रोपोजिशंस और फिर मैं नहीं वो फिर आप क्वेश्चन खत्म कर जी जी मैं खत्म फिर इस प्रोपोजिशन में एक और भी डाल दें जो मेरे जहन में आ रही है। सर सपोज ये 12वां सवाल अब इस सवाल नहीं प्रोपोजिशन। अच्छा ये जब माय लॉर्ड जिसमें मंसूर शाह साहब ने कहा था कि सपोज 100-200 लोग आजाद आते हैं जी। वो किसी पार्टी में शामिल नहीं होते, कुछ दिनों के बाद वो अपनी पार्टी बना वो लेते सवाल हैं, मुश्किल। क्या वो हकदार होंगे इन सीट्स? वो एक मुश्किल सवाल है जो इसमें शायद नहीं वो बना हमारे- नहीं सकते बिकॉज वो पॉलिटिकल पार्टीज पहले नोटिफाई हो गए बाद हैं में विद बनाते हैं। सिंबल्स। बाद में देखें तो पार्टी वही होगी जो पहले नोटिफाई हुई थी। मेरे ख्याल में तो Don't think उस ये- ऐसी सिचुएशन में उन इंडिपेंडेंट्स की लॉटरी निकल आई। next proposition. Faisal Sahab, I mean, on a lighter note, I was visiting the Canadian Supreme Court, जी, जी। and I sat in the Court 1 of अच्छा। Canadian Supreme Court. तो उनका टाइमर लगा हुआ था लॉयर का 1 घंटा। मैंने उसमें देखा कि सवाल भी पूछे गए, लेकिन 1 घंटे में सब कुछ हो गया। तो मैं सोच रहा था उधर बैठे कनाडा में कि कैसे होता है कि फुल कोर्ट में वकील साहब 1 घंटे में आर्ग्यूमेंट्स भी कर लेते हैं और सवाल भी सारे हो जाते हैं। सर मैं आपको साहब बताऊं आपको इस बात का जवाब भी अगर देंगे। अगर आप अगर सर मैं आपको बताऊं जजेस टाइम फिक्स कर दें वकीलों के लिए दे विल फिनिश। No, but I was very impressed by the fact कि जजेस सवाल पूछ रहे थे, लेकिन 1 घंटे का जब वो टाइमर खत्म हुआ जो सब जगह लगा हुआ था, ऑडियंस भी देख रही थी उस घंटे को, सब कुछ खत्म हो गया। सर मैं आपको बता रहा हूं अगर वकीलों को मालूम हो 1 आवर में खत्म करना है वो खत्म कर। दिस इज समथिंग व्हिच आई माइट नॉट हैव लर्न फ्रॉम द कैनेडियन बट आई हैव लर्न फ्रॉम माय वाइफ। इसके लिए व्हिच इज वो टाइम फिक्स कर देती है, मैं उसके ऊपर नहीं जाता। सर अब इसके लिए जजेस को मेरे ख्याल में कुछ अरसे के लिए ट्रेनिंग के लिए भिजवाना चाहिए। सर मैं प्रोपोजिशन लिखूं। नेक्स्ट, whether any party could be allocated reserve seats, When you say party, you mean political party. जी political party जरा आहिस्ता लिखाइएगा। I started appreciating my steno so much today. अच्छा जरा आहिस्ता लिखाइए। whether any political party could be allocated reserve seats which are disproportionate to their representation based on the total number of general seats secured by them. Now this was the negative part which देखिए मैं ये तो फार्मूला तो ये तो मैं ये दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ द एंटायर सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रेप्रेजेंटेशन। अच्छा अब लास्ट अच्छा इधर जरा सा एक चीज जहन में आई है तो आप उसको जवाब ना दीजिए, सोच के जवाब दीजिएगा। एक पॉलिटिकल पार्टी कंटेस्ट करती है, लेट्स मफरूजे पे चलते हैं जी, 100 सीटें, ठीक है, हर 100 सीट में वो 1 वोट से हारती है जी, सिर्फ 1 वोट से जी, ठीक है। तो जमहूरियत का तो तकाजा है कि उसको मतलब दूसरे से कम वोट मिले। अगर हम जमहूरियत में जा रहे हैं, अगर उस तरह से जा रहे हैं, अदरवाइज उसको एक सीट का भी हकदार नहीं बनी, क्योंकि हर जगह वो 99 100 की 100 सीटें 1 वोट से हारी हैं जनरल इलेक्शन में, तो उसने कुछ सीट नहीं जीती अभी पार्लियामान में, सही है। तो वो किसी खवातीन की सीटों और नॉन मुस्लिम की सीटों के हकदार नहीं बने। तो ये एक हाइब्रिड सिस्टम है जो हमें देखना होगा जैसे लिखा गया है। ठीक, ये जरा आप गौर कीजिए, बिकॉज ऐसी चीजें हम फैसला जब करेंगे तो हो सकता है ऐसी दलाइल हो, कोई पार्टी हो कहे जी मेरे पास सपोज ये भी हो सकता है। इससे भी आगे मैं बढ़ता हूं कि जो पार्टी जिसको सबसे ज्यादा मुल्क में इलेक्शन में वोट मिले वो माइनॉरिटी में चली जाए, ये भी हो सकता है, क्योंकि वो ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जहां उनको बहुत इलेक्शन वोट मिले और कुछ में वो थोड़े से वोट से, बलूचिस्तान वगैरह में जरा वोट्स कम होते हैं, उनका नंबर आगे आ गया।
तो ये हम जब जमहूरियत की बात करते हैं तो फिर ये पूरी जमहूरियत देखना चाहिए, पूरा आइन को साथ रख के। तो ये अभी आप इस पे कमेंट ना कीजिए। Rest assured, I will be faithful to the text of the law. I will not ask your lordship see the object of what the parliamentarians wanted to do. इसीलिए मैं emphasize करूंगा। तीसरी बात ये है, पाकिस्तान की तारीख में नॉन पार्टी इलेक्शंस भी हुए हैं और आपको पता है कि कौन कराते हैं, और सियासी पार्टीज इसके हमेशा खिलाफ रही हैं। सही है, यहाँ तक तो बात सही है ना? तो ये मजबूर किया जा रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज में आओ, इंडिविजुअली आपकी कोई हैसियत नहीं है, आप खत्म हो। तो जब एक पार्टी अब, और ये फिर ये जो शुमारे शाये किए जाते हैं ना लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स के, अगर मैं मफरूजा कह रहा हूँ, आप पे नहीं कह रहा हूँ, कि कोई पॉलिटिकल पार्टी ले दे एक लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, वो इलेक्शन जो इलेक्टोरेट है वो उसको वोट ही ना दें, अच्छा इसको तो हम नहीं देंगे वोट, बिल्कुल वो पूरा अपना सिस्टम ही बदल लें। अगर ये सब चीज़ें बाद में आएंगी तो वो पब्लिकेशन का मतलब क्या हुआ? जो पहले उनको देना चाहिए थी लिस्ट, जो वो फिर एक उसी उनसे गुजरते, उनकी छानबीन होती, अपीलें होती, नॉमिनेशन सही है गलत है, विड्रॉ करते ना करते, तो ये फिर आप कह रहे हैं वो सारे जो सेक्शंस हैं उनको हम कैसे देखेंगे? ये सब अप्लाई करेगा, बट आई विल कम टू